Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, good evening. Be peace on you, the mercy and the blessing of Allah. Welcome to Wisdom E-Ikat. I am your host, Muhammad Nawaz Sharif, live from my office, my hometown, Chishtian, Southern Punjab, Pakistan. The distinguished guest we are having today with us is a young blood, revolutionary-minded person, law graduate, the founder of the Law Academy, Mr. Akib Azur from Bahawalpur. Welcome, Mr. Akib Azur, and thanks for joining me. Thank you so much, Nawashiri, for inviting me here on this platform. It's really an honor for me to be here as a guest on in today's session. Thank you so much. So Mr. Akib, how's going on? Alhamdulillah, all praises belongs to Allah. Everything is fine, and I am expecting the same from you. God be praised. God be praised. So before commencement of this debate, just like a mutual discussion, I just want to again mention the topic for the convenience of our audience, that Pakistan, a true democracy, and the other segment that it does entail that judiciary obstacles in Pakistan. So Mr. Akib, we are moving towards our first question. Yes, you are going to Islamic Republic of Pakistan, which emerged after thousands of lives were sacrificed, indeed, and its governance system that we traditionally call it to be democracy, that government of the people, for the people, and by the people. Mr. Akib, because we know that in judiciary, in democracy, justice through law and order is inevitable to maintain peace and supremacy of even a layman. How judiciary of this time is playing its role to make the state really democratic, in which the constitutional supremacy is upheld? Thank you, Nawashiri, for your question. To answer your question, I would like to mention some lines from the preamble of Constitution 1973. It is stated that it is the will of people to establish independency of judiciary, and it is judicial responsibility to protect the mandate of people. Now, the principle of judicial responsibility is to protect the rule of law and to ensure supremacy of law. We have a lot of landmark judgments in our history, like if you remember, Pervez Musharraf, Mashallah, it was a time when the whole parliament was overcome by General Musharraf, and Pervez Musharraf became the martial law administrator, and he was the most powerful person at that time. At that, it was your judiciary at that time who said that you don't have a mandate of people. How you overcome this power and all this. And अगर आपको याद पड़ता हो, उसके बाद जो है उसने 3 साल का टाइम लिया था हमारी जुडिशरी से कि आप मुझे 3 साल का टाइम दे, मैं मैंडेट लेकर आता हूँ. और उसके बाद आपने देखा कि उसने काफ लीग बनाई. काफ लीग बनाने के बाद जो है उसने इलेक्शन कराए और 2002 के अंदर इलेक्शन हुए और वो मैंडेट लेकर आया. इसके अलावा भी अगर आप देखें, जुडिशरी ने हमेशा जो है इसके लिए डेमोक्रेटिक कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी के लिए जो है हमेशा अपना रोल प्ले किया. लाइक इसके पास पावर है सो मोटो एक्शन की. इस सो मोटो पावर को हमेशा यूज करती है जहां पर वो देखती है कि कहीं पर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज हो रही है, नॉन डेमोक्रेटिक कोई चीज हो रही है, तो वहां पर आपकी जो जुडिशरी है वो सो मोटो एक्शन लेती है. अभी आपके पास रिसेंट इंसिडेंट है, आपके पास अगर आप देखें तो आपके पास जो है जनरल बाजा वाली जो एक्सटेंशन है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर अपनी अथॉरिटी यूज करना चाह रहे थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये नॉन डेमोक्रेटिक है. जब आपके पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप उस प्लेटफॉर्म पर जाएं और वहां से जाकर इसको बिल को पास करें. तो आपने वो देखा, सारी जो है हमारी कौम ने उस चीज को जो है विटनेस किया और देखा किस तरह से जो है इस चीज के ऊपर एक्शन लिया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने और इसके ऊपर अमल दरामद किया. तो जहां तक हमारी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है वो करती है इसके ऊपर. Sure, Mr. Akib. Hope this answers your question. Yeah, obviously. So, extrajudicial killing and unlawful killing experiences cases as well. We do have robbery, corruption, adultery, lawlessness, and with another thing, that encroachments that are going to be made legitimate. How this all is happening in a democracy? These inequities are dramatically increasing day after day, and these are not going to be controlled. Seem to be uncontrollable. How judiciary is playing its role to control it? What's the response of democracy towards them? नवाज शरीफ, दिस क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड फ्रॉम द लॉ एनफोर्समेंट इंस्टीट्यूट्स कि वो अपना रोल क्या प्ले कर रही हैं. ये तो काम बनता है लॉ एनफोर्समेंट इंस्टीट्यूट्स का कि ये जो सोसाइटी के अंदर आपके इतने जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ रही है, रेशो बढ़ रही है, इसको कंट्रोल तो करना है ना आपके लॉ एनफोर्समेंट इंस्टीट्यूट से. अब जहां तक बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जहां तक आपकी बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो जुडिशरी ने यहाँ पर प्ले करनी है, तो जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट ही तब होती है जब वहां पर जुडिशरी के पास उसके पास कोर्ट के अंदर केस आ जाता है.
अब केस आता है, उसकी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो है दोनों तरफ से पार्टीज जो हैं उसको प्रोसीड करती हैं, सारे विटनेसेस आते हैं, सारे प्रूफ के बाद एक आपके पास प्रेसिडेंट आता है। अब जुडिशरी का रोल अगर आप देखना चाहते हैं तो ये प्रेसिडेंट आपके पास बेस्ट एग्जांपल है। जैसा कि आपके पास ये एसिड अटैक्स वाले कल्प्रिट्स थे, इसकी आप एग्जांपल इस तरह से देखिए, हमारे कानून के अंदर जो चीजें मौजूद थी वो इस तरह से थी कि आप अगर किसी के मुंह के ऊपर चाय का कप फेंकते हैं गरम, तो उसकी भी वो सेम उस चीज को इसी एंगल के अंदर देखता था, जैसे आप एसिड किसी के फेस के ऊपर फेंकते हैं उसको इसी नजरिए के अंदर देखता था। तो हमारा ये जुडिशियल प्रेसिडेंट आया जिसके नतीजे के अंदर इस चीज को उन्होंने देखा कि इसकी जो सेवेरिटी है बहुत ज्यादा है, जो यहाँ पर आपका पेशेंट है उसको ज्यादा यहाँ पर जो है इस चीज को बेयर करना पड़ता है, इसकी सेवेरिटी बहुत ज्यादा है। तो उसके बाद हमारे पास प्रेसिडेंट आ गया कि इसके ऊपर जो है 7 साल से जो है उम्र कैद तक इसकी सजा हो जाती है, साथ में काफी आपको फाइन भी कर देते हैं, ताकि इन जो क्राइम्स हैं इन क्राइम्स को फ्यूचर के अंदर इनको कम से कम कर दिया जाए। अब जितनी कोशिश हो सकती है हमारी जुडिशरी तो अपना रोल प्ले कर रही है, बाकी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लॉ एनफोर्समेंट इंस्टीट्यूट की। लाइक कि अगर कोई एक शख्स कत्ल करता है, तो एक शख्स कत्ल करता है तो उसकी सजा तो आपकी जुडिशरी ने दे दी, तो उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किसने कराना है? प्रेसिडेंट को ये एग्जीक्यूट कराना होता है लॉ एनफोर्समेंट इंस्टीट्यूट्स ने। तो ये दिस क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड फ्रॉम लॉ एनफोर्समेंट इंस्टीट्यूट दैट व्हाई दे आर नॉट Sure, परफॉर्मिंग देयर sure. ड्यूटीज। It does show the weaknesses of our law enforcing institutes or the departments we are working at this time. So, Mr. Akib, since long we have been listening to certain voices which seem to be revolting against the state, and they give us an impression for this mutiny that they are completely disappointed by the judicial system of Pakistan, and they still blame it to be that it seems to be biased. And so, how can you justify an equitable, independent role of judiciary in this regard towards their question, towards their accusations? बिल्कुल नवाज शरीफ, आप सच कह रहे हैं कि हमारा जो कंट्री है ना इसके अंदर मीडिया ट्रायल एक बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। वही चीज हम लोग सच समझने लग जाते हैं जो चीज मीडिया के ऊपर आ जाती है। मगर यहाँ पर आप एक चीज को देखें कि देयर इज अ सर्टेन प्रोसीजर टू इलेक्ट एनी, टू सेलेक्ट एनी जज, ठीक है। अगर आपने कोई सुप्रीम कोर्ट का जज इलेक्ट करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर जो है कमीशन बनता है। उस कमीशन के अंदर मोर देन 15% आर इन्वॉल्व टू इलेक्ट इवन अ सिंगल पर्सन, इवन अ सिंगल जज, ठीक है। उसके अंदर आपका प्रेसिडेंट भी शामिल होता है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का आपका चीफ जस्टिस शामिल होता है, सीनियर जजेस शामिल होते हैं, उसके अंदर जो है आपका अटॉर्नी जनरल शामिल होता है, आपका लॉ मिनिस्टर उसके अंदर शामिल होता है। तो हम ये चीज नहीं कह सकते कि उसकी जो जो जज आ रहा है उसकी उसको ड्यूटी जो है वो पॉलिटिकल उसके ऊपर नेचर के ऊपर उसको ये जॉब मिल रही है। पॉलिटिकल नेचर तो इसकी है नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो किसी खास Exactly. बंदे को या किसी खास पार्टी को वो वहां पर सर्व करने के लिए आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है। अब बात आ जाती है दूसरी फैक्ट्स के ऊपर आते हैं, आपके क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जहां पर आपने Okay. कहा है कि माइट इज राइट की बात है और लोगों का जो है इस चीज से बिलीव उठता जा रहा है। वो कहते हैं कि ये जुडिशरी सर्व करती है, अमीर को तो सर्व करती है, गरीब को सर्व नहीं करती। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है। देखिए अगर इस्लामिक लॉ को हम देखें वहां पर क्या होता है कि अगर कोई शख्स कत्ल करता है तो उसके लिए दो सॉल्यूशंस हैं जो आपको दिए गए हैं, एक कसास दिया गया है, दूसरा दय्यत दिया गया है। अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई दूसरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दय्यत वाली साइड पे जाता है और उसको फॉलो करता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जस्टिस नहीं हुआ या इक्विटी नहीं हुई वहां पर। तो जस्टिस तो यहाँ पर भी प्रीवेल कर रहा है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब आ जाते हैं Mr. माइट Akib, इज राइट की अमीर की बात कर देते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर कौन नहीं जानता, जी, कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान के अंदर मोस्ट पावरफुल पर्सन जो है थ्री टाइम्स का प्राइम मिनिस्टर था नवाज शरीफ, ठीक है। क्या उसको जो है एग्जम्पशन मिली? क्या भुट्टो को एग्जम्पशन मिली? मलिक रियाज जो बिजनेस टाइकॉन है उसको भी 470 बिलियन का उसको जो है आपके चीफ जस्टिस साकिब निसार उसको चलान वो करके गए थे कि आपने जो है ये अनलॉफुल जो है जमीन आपने ली है तो आपको ये फाइन पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम नहीं कहते, अगर किसी को जस्टिस मिल रहा है तो वहां पर आपकी जुडिशरी के अंदर सॉल्यूशंस होते हैं। अगर कोई एक लेफ्ट साइड वाले सॉल्यूशन की तरफ जाता है तो वो मतलब वो कसास वाला है, राइट साइड वाले सॉल्यूशन की तरफ जाता है तो वो दय्यत वाला है। तो दोनों तरफ से जो है वो जस्टिस प्रिवेल कर yes, रहा है। Mr. Akib, we do praise our judiciary for all of these acts that you are saying to us. But sometimes the people have certain questions about that, and it's a democratic arena. We can raise that question or raise a question over that. So, Mr. Akib, a mentally paralyzed suspect is mentally tortured and succumbed to death during investigation. On the other hand, suspected but afterward proved to be innocent parents of the innocent kids are ruthlessly tortured. They are assassinated. They are killed in front of their eyes. Where is judicial commission? Where is the trial? And where is the constitutional supremacy? Where is the justice for these kids in Islamic Republic of Pakistan? And open talks, Mr. Akib.
Nawaz Sharif, no doubt it was a barbaric incident and the whole country witnessed it. हमारे पास जो है मीडिया के ऊपर इसकी वीडियोस चलती रही हैं और सारी दुनिया ने इसको देखा, हमने भी देखा, तो बहुत बड़ा इंसिडेंट था जिसको हम जो है भुला नहीं सकते चाह कर भी। मगर बट वी शुड नॉट फॉरगेट द फैक्ट्स। ठीक है, आप अगर देखें तो उसके अंदर द थर्ड पर्सन वाज आल्सो ट्रैवलिंग विद देम। ठीक है, व्हाई दे अलाउ हिम टू ट्रैवल विद देम फ्रॉम सरगोदा टू लाहौर? वो उसके साथ ट्रैवल क्यों कर रहा था? उन्होंने इसको अलाउ किया। दूसरी बात ये है कि आपकी जो मिलिट्री की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, सीटीटी की ट्रेनिंग, आपकी मिलिट्री की ट्रेनिंग और साथ में रेंजर्स की ट्रेनिंग, उसके अंदर जब उनको क्ल्यू मिल जाता है, क्ल्यू मिलने के बाद आप वो उसको टारगेट होता है उनके पास, उन्होंने उसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट के बाद उन्होंने उसके रिजल्ट्स को देखना है कि रिजल्ट्स आए क्या है। ठीक है, मगर बट आई मस्ट से हियर कि ये बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको इसके ऊपर चेक जरूर पुट करना चाहिए कि किसी भी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने से पहले उसके ऊपर इस चीज को इंश्योर कर लेना चाहिए कि अगर उनके पास देखिए असला नहीं था, ठीक है, अगर उनके पास एमओ नहीं था, उनके पास वेपन्स नहीं थे, तो फिर वाई दे एग्जीक्यूट देम? ठीक है, उनको वो गिरफ्तार करते, हो सकता था अगर वो कल्प्रिट थे तो वहां से हमें कुछ और चीजें मिल जाती, उसको हमारे पास प्रॉपर यहाँ पर प्लेटफॉर्म मौजूद था, उनको मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाते, मगर उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया। इसलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट officials must put Exactly, check on this. exactly. Mr. Akib, I do second your narrative, and similar is the kind of opinion that coming from the rest of the people who are thinking that that was really a barbaric act. And they must again look at your way of proceeding towards certain accomplices are really culprits. So, Mr. Akib, what's the response of Yeah. judiciary and the government to them who are have a state within a state and since long planning to have their own separate state because they claim that they are completely disfranchised, they are going to be dispossessed, and they are not going to be preferred like the other provinces. And this is particularly talking about racial and provincial discrimination within Pakistan because there are certain voices which are going to be raised as Jag, Punjabi Jag, Azim Balochistan, Sindhu Desh, and as Pakhtunistan. All of them are our brothers. And what's the response of judiciary as well as the democracy to them? Why they are going to be disfranchised and dispossessed? नवाज शरीफ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी लिसन दीज वॉइसेस ऑन डेली बेसिस। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पर जुडिशियल का रिस्पांस क्या, आपने मुझसे पूछा है कि अपनी ओपिनियन दें जुडिशियल रिस्पांस के बारे में, तो जुडिशियल जो रिस्पांस होता है इनके बारे में बिल्कुल सेम होता है जो आपकी स्टेट का होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अब बिलावल भुट्टो जो है यहाँ से उठे वो कहें कि हमें पाकिस्तान जो है हमारे राइट्स नहीं दे रहा, तो हम चाहते हैं कि हमें जो है सिंधु देश हमारा बना दीजिए, हमें अलग कर दीजिए। तो इस तरह के जिनके भी नैरेटिव्स होंगे, जिनकी भी आइडियोलॉजी होगी, जिसका भी ये मोटो होगा, दे ऑल आर नोन एज ट्रेटर्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उनके साथ कोई जो है जनरल बिहेवियर नहीं रखा जाएगा, उनके साथ स्पेशल बिहेवियर होगा, उनको ट्रेटर्स की उसकी डिक्शनरी के अंदर इसको देखा जाएगा। अब यहाँ पर आपने एक चीज और मेंशन की है कि अगर उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे तो फिर वो कहते हैं हमारे राइट्स नहीं मिलते और जो है मतलब इनइक्वालिटी है जिसकी बेस के ऊपर जो है हम चाहते हैं कि हमें अलग कर दिया जाए। तो हमें जो है उन लोगों को चाहिए कि वो अपने अंदर से ब्लैक शीप्स को निकालें। अब पाकिस्तान के अंदर जो है पार्लियामेंट के अंदर इक्वल जो है आपके पास सेनेट के अंदर अगर आप देख लें, नेशनल असेंबली के अंदर तो होता है कि आपकी जितनी पॉपुलेशन है पॉपुलेशन वाइज आपको सीट्स वहां पर मिलती है, मगर सेनेट के ऊपर आपको चारों प्रोविंसेस को आपको इक्वली सीट्स मिलती हैं। तो आपको चाहिए ना कि आप अपने इस तरह के पब्लिक जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करें जो वहां पर जाएं और आपके हकूक की जंग लड़ें। ठीक है, आप उनको सिलेक्ट नहीं करते और आप आते हैं कि भाई हमें अलग कर दो, ये कर दो। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, बलोचिस्तान के अंदर जितनी भी टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं उसके पीछे कौन होता है? बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी होती है। ये वही लोग हैं जो अकबर बुगटी के दौर के अंदर ये लोग सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को किसी को नहीं मानते, ये हमारा स्टेट है, हम लोग पाकिस्तान बनने से भी पहले रह रहे थे, अब भी यही है, पाकिस्तान यहाँ से चले जाए, बेशक भाड़ में चला जाए, हमें अलग कर दिया जाए। Was it their तो official statement? Was it their official statement? yes, it was their official statement by Akbar Bugti. Akbar Bugti was their leader at that time. ठीक है, उन्होंने कहा हम नहीं मानते आप लोगों को ना, तो आपने देखा फिर उसका क्या हुआ, उन्हें स्टेट ट्रेटर्स के तौर पर देखा गया और मुशर्रफ ने उनको एग्जीक्यूट किया। अभी भी अगर ये लोग सामने आ जाते हैं तो इनको जो है मिलिट्री कोर्ट्स में पेश किया जाता है और इनको एग्जीक्यूट किया जाता है, इनके साथ कोई रियायत नहीं होती। दे आर नॉन एज स्टेट ट्रेटर्स Okay. सिंपली। It means that you do confess and you do agree that they are going to be disfranchised and dispossessed. But the problem with them is that they are not going to kick out the black sheep that are lying with them. Is it so, Mr. Akib? Yes, definitely. Is it so? Okay, Mr. Akib, It in is. the last few months, some senior lawyers in form of crowd, just as
most fragile and sensitive parts, sensitive premises, just like a hospital that was attacked. They came to blows with the doctor, with the staff on the duty, and they critiqued the complete working there. In the meanwhile, deaths of some patients ultimately did happen, did occur. Mr. Akib, what kind of barbaric demonstration that was? What's your opinion about that? If everything is going in accordance with the democracy, then how did it become possible? Nawaz Sharif, it's been more than 8 months, I think, since this incident happens, and everything is still fresh in my mind. I have never forgotten even a single moment of that. अच्छा, इसके अंदर आप देखिए कि उसके अंदर हुआ क्या था कि आपने यहाँ पे कहा है कि बारबेरिक इंसिडेंट हुआ, नो डाउट हुआ। अब इसके अंदर हुआ क्या, जिन वकला के ऊपर जो है तशद्दुद किया गया, जहां से ये सारा सिनेरियो शुरू हुआ, तो वो उनके ऊपर जो है ये जो तशद्दुद किया गया, ये भी तो उसी कार्डियोलॉजी सेंटर के अंदर किया गया जहां पर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके बाद फिर आप स्पीचेस करते हैं, डॉक्टर अदनान की स्पीच कौन भूले, आपको भी याद होगा। उसके अंदर डॉक्टर अदनान कहते हैं कि वो आपका इलाका है, ये हमारा इलाका है, हमारे इलाके के अंदर घुस के दिखाओ। आप इट मीन्स इंसाइट कर रहे हो उन्हें, उन्हें गुस्सा दिला रहे हो, जब इस तरह की चीज होती है। अच्छा, ये सारा जो इंसिडेंट हुआ था, मैं इसमें समझता हूँ कि डॉक्टर्स की भी मिस्टेक बाद में है, इसमें बुकला की भी मिस्टेक बाद में है। इसमें पहली मिस्टेक है स्टेट की, दूसरी आपकी लॉ इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूट्स की। इन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया। अगर ये लोग अपना काम पूरा करते तो ये हो ही नहीं सकता था कि ये वाला इंसिडेंट जो है वो अक्सर होता। ठीक है, अब इसने क्या किया, आपकी पुलिस ने एफआईआर नहीं की, उसके बाद जिन डॉक्टर्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, इन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद जो है एक मॉब की शिकल के अंदर कचहरी से निकलकर हॉस्पिटल तक वकला बरादरी जो है वो पैदल जा रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। 4-5 किलोमीटर का डिफरेंस है वो, उस हॉस्पिटल से लेकर पीएमएस लाहौर से लेकर वो कचहरी के दरमियान, किसी ने उनको नहीं रोका। जब इंसिडेंट हो गया उसके बाद आपने देखा कि उनके साथ वकला के साथ क्या उन्होंने बिहेवियर रखा, इस तरह के जैसे वो आपके मुल्क के गद्दार हों, ट्रेटर्स हों। उनके मुंह पर काला कपड़ा है, उनके पाँव में जूता नहीं है। तो इस तरीके का जो है ये कोई डेमोक्रेटिक जो है बिहेवियर नहीं था हमारे स्टेट का उस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि ये स्टेट की सारी गलती थी जिस वजह से ये इंसिडेंट हैपन हुआ सारा। So you, Mr. Akib, hold democracy for this whole scenario, for this whole chaos. Is it Yes, so? That belated yes. response as well as the absurd was Only law going to enforcement show from the side of institutes and yes, they are responsible. Definitely, they are responsible for this. Mr. Akib. Now I'm just coming to light questions. That would be quite facile for you to answer. So, Mr. Akib, who's a role model lawyer at this time for you? Alhamdulillah, my uncle is my role model and I am really inspired from him. और मुझे उनकी लाइफ से, आप क्योंकि मुझे स्कूल लाइफ से जानते हैं, उसके बाद आप जानते हैं कि मैं कितना सोशल हूँ, मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है। आई रियली लव टू कम्युनिकेट विद पीपल एंड उनके साथ मतलब इंगेज होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उस वजह से मैं अपने अंकल को ऑब्जर्व करता था और उनकी एक्टिविटीज जो थी, मतलब उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी था, उसने मुझे काफी एडमायर किया और उस वजह से जो है मेरे रोल मॉडल भी वही हैं और मैं उनको इंस्पायर करता हूँ। So, Mr. Akib, this is very important question. It's a really a question mark over certain institutes that are going to provide us with justice. That how can we get rid of the agony of the long court proceeding that just goes on generation after generation and just is going on. Still, we are waiting for the decisions. We are waiting for verdicts. How we can overcome it? आपने बिल्कुल ट्रूली मेंशन यहाँ पर किया है कि यहाँ पर जनरेशन ओवर जनरेशन जो है एक केस अगर आता था तो उसको 3 नस्लें जो है वो केस उस चीज की पैरवी करते रहते थे। ये नो डाउट कि ये हिस्ट्री के अंदर या हमारे पास के अंदर की चीजें होती रही हैं। अब हमारी जुडिशरी जो है इस चीज को ओवरकम करने की बहुत कोशिश कर रही है। हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, हमारी जो लीगल इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि जैसे आपका पार्लियामेंट हो गया, आपकी पंजाब असेंबली, प्रोविंशियल असम्बलीज भी इसके ऊपर काम कर रही हैं। ठीक है, जैसा कि आपने पिछले दिनों सुना होगा कि जायदाद की तकसीम के लिए जो है वो नादरा की तरफ ले गए हैं उसको, और 1 साल के अंदर अंदर जो है ये केसेस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके अलावा काफी रेवोल्यूशन आ रही है हमारी जुडिशरी के अंदर जो है। आपने देखा होगा आसिफ सईद खोसा साहब, ये ई कोर्ट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हैं, साथ में मॉडल कोर्ट्स इंट्रोड्यूस कराई हैं। मॉडल कोर्ट्स के अंदर 4 महीने के अंदर अंदर आपका जो है केस क्लोज हो जाता है। आपको कोई भी केस हुआ है, आप केस का प्रोसीजर होता है, सिविल प्रोसीजर्स होते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड होते हैं, उस सारे प्रोसीजर्स को कवर करने में इतना टाइम मिनिमम लग जाता है। अब ये नहीं है कि कोर्ट इसके पास जजेस के पास टाइम नहीं है, आज पेशी मिली है तो अगली पेशी 6 महीने के बाद, ऐसा नहीं। मैक्सिमम 12 दिन के बाद, 10 दिन के बाद आपकी पेशी होती है और आपका कोर्ट जो है फाइनल आपको जजमेंट दे देता है विद इन 4 मंथ। तो ये काफी चीजें जो है इंप्रूव हो रही हैं।
जिससे आवाम को फायदा होगा। ई कोर्ट्स का भी बहुत फायदा हो रहा है। अभी जिसने इस्लामाबाद जाना होता था वो लाहौर से बैठ के वीडियो लिंक के जरिए जो है अपना जो है केस के अंदर अपेयर हो सकता है। तो काफी चीजें जो है इंप्रूव हो रही है हमारी जुडिशरी। So, Mr. Akib, I'm just coming toward the last question. Pakistan, its democracy. You may say that Pakistan, this state is a role model for democracy, or autocratic democracy, or democratic autocracy, or neither fish nor fowl. पाकिस्तान इज नॉट अ रोल मॉडल फॉर डेमोक्रेसी, मगर ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का और गवर्नमेंट का, वो बिल्कुल, ये तो हम कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक है। मगर जो अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो कहाँ पर बैठे हैं, उनकी एक्टिविटी और उनके सारे सिचुएशन बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है। इफ दे आर सिटिंग इन अ टॉक शो, दे विल बिहेव लाइक दे आर इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट, ठीक है। अगर वो बैठे हैं सेनेट के अंदर, सेनेट के अंदर जो है डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेसी वहां पर चल रही होती है। अब आप इस चीज को जो है वो कह सकते हैं कि अगर वहां पर बैठा है पीपल पार्टी वाला जो है वो जाकर उसको वोट देकर आ जाए खुल्लम खुल्ला और वो कहे कि मैं इस चीज को हक जानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जो चीज सही है मैं उसको वोट दूं, ऐसा पाकिस्तान के अंदर नहीं होता। जैसे उनका लीडर कहेगा, जैसे उनकी पार्टी कहेगी, चेयरमैन कहेगा, वैसे उनको करना पड़ेगा। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेसी है। अगर हम देखते हैं यूके के अंदर, वहां पर अगर उनकी पार्टी भी गलत होती है, जैसे पाकिस्तान के अंदर स्पीकर आपकी अपनी जो है पार्टी का होता है, वहां पर भी स्पीकर उनकी अपनी पार्टी का होता है। मगर जो है स्पीकर, उन्होंने इस चीज को जो है पॉलिटिकल, इन जो ये सीट्स है इनको मतलब डीपोलिटिसाइज उन्होंने की है, ठीक है। वहां का जो स्पीकर है वो अपनी ऑफिस में जाने से पहले 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 अपनी अपनी जो है वो पार्टी को है खैर बात कह देता है। खैर बात कहने के बाद अगर समटाइम्स वो जानता है उसको वोट का हक दिया जाता है, तो वो समटाइम्स, हमने फ्यूचर हिस्ट्री के अंदर ऐसा भी देखा है कि वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट दे देता है। तो पाकिस्तान के अंदर इस चीज की हम ऑब्जर्व नहीं करते ऐसी चीजों को। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेसी है, ना कि डेमोक्रेसी है। Mr. Akib, what's your message? What's your polite message for the students who are going to graduate in law? मेरा पहला तो माय फर्स्ट मैसेज इज फॉर पब्लिक जनरली कि आप जो है मीडिया ट्रायल जब चल रहा होता है तो मीडिया को आप उसकी बात को हक नहीं जानते है ना। तो जो मीडिया कह रहा है जरूरी नहीं है कि वो सच हो, ठीक है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कत्ल के वाले केस के अंदर जो है कसास वाली भी ऑप्शन है, दैयत वाली भी ऑप्शन है। अगर कोई दैयत की तरफ जा रहा है तो आप उसको समझते हैं कि यहाँ पर इंसाफ नहीं हुआ, तो आप जो है उस केस को स्टडी किया करें। स्टडी करने के बाद जो है फिर अपनी एक ओपिनियन कायम किया करें। और लॉ स्टूडेंट्स के साथ मेरा ये है कि वो जितना स्टडी करेंगे उतना उनके प्रोफेशनल लाइफ के लिए उतना बेहतर है। उनको जो है रीडिंग की हैबिट जो है वो जरूर डेवलप करनी चाहिए। और ये चीजें जब तक नहीं होगी तब तक जो है वो अपनी लाइफ के अंदर जो है अपने प्रोफेशन के अंदर सक्सेसफुल नहीं बन सकते। और नवाज शरीफ आप देखें, अगर कोई हमारे पास लाइव सेशन के अंदर कोई क्वेश्चन आपको शो हो रहे हैं, अगर हमारी ऑडियंस की तरफ से हमें कोई क्वेश्चन मिले हो तो आप उनको भी ले लें, आप चेक Sure, करें Mr. इसको। Still, not at all. Mr. Akib, in the last, I would be adding a certain point. Law and justice. Means justice through law. These exist just for maintaining the peace, serenity within a society. But when these become faulty, these become damaged, and these become fractured. So afterward, they're going to become mismanaged, or just like these are going to become impediment in the flow of the social progress. So again, similar is the case. I would be delivering the same message for the students who are especially going to graduate in the law degree, that they must always first look after the facts. They must search about the facts. Then they must make a decision. They must make a point of view about a certain narrative. So Yes. this is, they must not be very fast, or they must not be very quick in making any decision. And so they must become very, very conscious about this thing, because they can become a cat's paw in hands of some It's your non-state individual. Yes, Muslim. Nawaz Sharif, it's your individual responsibility as a citizen of Pakistan that you must know the facts. Without knowing fact, how can you give judgment about anyone that he is right or he is wrong? You cannot say Sure, anyone like that. Yes. sure, Mr. Agib. That's how we need to educate each and every youth, each and every young man Yes. who is at this time, because they are going to be damaged at this time by certain forces that are going to dispose our just as the talent of our people, because they don't have at this time adolescent energy, but that is going to be you may say damped at this time. So they must be very conscious, their parents as well, their neighbors as well, and the role of the teacher must be ideal, because the students always look towards their And teacher.
And that was a motto of our today's session, that we should promote awareness in front of students, that how they must know about the facts, about the knowledge, and to create awareness, we created this session for our audience and all that. श्योर मिस्टर आकिब, इकबाल ने ऐसे तो नहीं कहा था ना कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, until and unless our each and every individual is not considering himself to be completely responsible, we can progress, we cannot even move ahead a single step. That's how everyone must become responsible citizen of Pakistan, and they must be sincere to the state. Then afterward we can think about the progress, we can think about the development, and we can think about being in the list of the developed countries. So thank you very much, Mr. Akib, joining me. Inshallah, we would be holding on such sessions for the convenience of for our youth, and it would be really very convenient for them as well. Thank you very much, Mr. Akib. Thank you.